welcome to all my lovely Smartians. How are you doing? I really hope all my Smartians are fit and fine. So as promised, I am here with another video of question series. In this video, I'll be dealing with questions from the chapter Chemical Coordination and Integration, which we have covered up in my earlier video. If you haven't watched that video, please go and watch that video first. In this video, we will be practicing different questions, the PYQs, assertion reason type, statement based, match the following, and we'll assess our knowledge कि हमें कितना ये chapter समझ में आया. So let's begin, and before I begin, I would say, as I'll be displaying the questions, if you know the answer first, then just pause the video, write the answers and check it for the explanation. I'll be explaining everything in detail, whatever concept of the question will be. So let's begin. The first question says, hormones are nutrient chemicals, intracellular messenger, produced in high amounts, chemical messenger. So as explained earlier, hormones are basically non-nutrient chemicals which act as intercellular messenger. तो ये ऐसे chemicals होते हैं जो कि non-nutritive in nature है, and they help in communication between two cells, not within the cell, which are produced in trace amount, in very small amount, because a very small amount of hormone is enough to do its action. So seeing it, if we see, the first option is incorrect because it is written it's a nutrient chemical. Rather, it's a non-nutritive chemical. Intracellular messenger, wrong. It has to be inter, not intra. Produced in high amount, wrong. It is produced in low amounts. And is it a chemical messenger? Yes. So the correct answer is option number 1, that hormones are chemical messengers. Coming to second question, gonadotropin releasing hormone GnRH is produced by number 1 pituitary, number 2 gonads, number 3 hypothalamus, and number 4 placenta. So my Spartians need to answer it before I explain. Pause the video and answer. I have explained you very clearly in my chapters video. So basically, hypothalamus, which is part of diencephalon of forebrain, is also a master control center because it controls the secretion of the pituitary gland. तो ये हमारे pituitary gland के secretion को control करता है, इसलिए इसको master control center कहते हैं. और pituitary gland की secretions दूसरे organs, दूसरे glands के secretions को control करती है, इसलिए क्या है master center. How it controls the secretion of pituitary gland? By releasing two types of hormone, two categories of hormones. One are releasing hormones and the other are inhibiting hormones. ये वो दो कैटेगरी ऑफ हॉर्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस की जो कंट्रोल कर सकती है सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स. इसके अलावा भी हाइपोथैलेमस सिक्रीट करते हैं हार्मोन जैसे कि ऑक्सीटोसिन, दिस वैसोप्रेसिन बाय द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई. बट वो पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल नहीं करते. वो हार्मोन्स हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करती है. अदरवाइज एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने वाले हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस इस दो कैटेगरी के हैं. One example of releasing hormone from the hypothalamus is gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone is secreted by hypothalamus, which causes the release of gonadotropins from the anterior pituitary. So GnRH from hypothalamus controls the secretion of gonadotropins
from anterior pituitary and the the gonadotropins whose secretion is controlled by GnRH is LH luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. तो हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अपने गोनाडोट्रोपिन्स LH और FSH को तभी रिलीज कर सकता है जब हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा थ्रू गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन टू सिक्रीटेड, और हमारी बॉडी में GnRH प्यूबर्टी के टाइम रिलीज होता है. सो GnRH इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस. ऑप्शन नंबर 3. पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का कवर कर दिया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेरी वेल. Now let's move to the next question. The next question says somatostatin produced by hypothalamus. Number 1, stimulate the release of growth hormone, control the activity of beta and alpha cells of pancreas, inhibits the release of growth hormone, or number 4, controls the reabsorption of water in the kidney. तो सोमैटोस्टैटिन का आपको फंक्शन पूछा गया है. नाउ एज आई हैव एक्सप्लेन्ड कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशंस को 2 कैटेगरी ऑफ हार्मोन से कंट्रोल करती है, एक रिलीजिंग हार्मोन की कैटेगरी और एक इनहिबिटिंग. तो जब भी एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन को रोकना होता है कि आपका काम खत्म, अब आप रुक जाओ, तब हाइपोथैलेमस ही अपने किसी इनहिबिटिंग हार्मोन से ये सिग्नल देगा. इसलिए तो हाइपोथैलेमस मास्टर कंट्रोल सेंटर है, राइट. तो मैंने आपको ये समझाया था कि सोमैटोस्टैटिन क्या करता है. सो ऑल माय स्मार्टियंस विल टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट वुड सोमैटोस्टैटिन डू इन योर बॉडी. सो पॉज द वीडियो, डू इट. और जो पहली बार आए हैं जिनको नहीं पता है, देन डू नॉट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. सोमैटोस्टैटिन इज अनदर नेम फॉर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन. ये किसका दूसरा नाम है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन. तो ये जो हार्मोन है ये इनहिबिट करता है release of growth hormone from the pituitary, anterior pituitary. So it inhibits the release of growth hormone from anterior pituitary. जब growth hormone का body में काम खत्म हो जाएगा तब somatostatin will come and tell the anterior pituitary to stop the release of growth hormone. So option number 3 is the correct option. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड अबव एपिथैलेमस. रॉन्ग. पिट्यूटरी ग्लैंड इज बिलो हाइपोथैलेमस इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड सेला टर्सिका. इसके अंदर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड विद बेसिकली 2 पार्ट्स, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो ये जो बोनी स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेला टर्सिका. इसके अंदर हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है. एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्स डिस्टेलिस, ठीक है बेटा, और एक होता है पार्स इंटरमीडिया. अब ह्यूमंस के केस में ये इंटरमीडिया डिस्टेलिस के साथ ही मर्ज हो जाता है एंड इट फॉर्म्स द एंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है. जबकि ये दूसरा होता है पार्स नर्वोसा, जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कह सकते हैं. आया समझ में? तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा. Anterior to penile body, no. Ventral to the trachea, not at all. ये तो brain में होगा. In sella turcica, right. This is the most appropriate or the correct option कि जो pituitary gland है वो एक bony structure में located है जिसे हम कहेंगे sella turcica. Coming to the next question. In humans pars intermedia is almost merged with, मैंने अभी आपको बताया कि पार्स इंटरमीडिया
पार्स डिस्टालिस से मर्ज हो जाता है। तो ये तो मेरे सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पार्स डिस्टालिस। सो इट मर्जेस विथ पार्स डिस्टालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन आर ट्रांसपोर्टेड टू न्यूरोहाइपोफाइसिस थ्रू। तो आप फटाफट ये आंसर बताएंगे। न्यूरोहाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, ठीक है। रिमेंबर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन रिलीज करता है, पर बनाता कौन है इसे? हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। तो ये जो हॉर्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक किसके थ्रू पहुंचते हैं? दे रीचेस थ्रू द एक्सॉन एंडिंग्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी ब्लड रॉन्ग, interstitial fluid wrong, axons right. So it reaches through axon. इसलिए posterior pituitary direct neural control में होता है of hypothalamus, whereas anterior pituitary is controlled via releasing and inhibiting hormones which transports through blood, a hypophyseal portal system. सो यहाँ पर अभी क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात है, डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल है, तो ये किसके थ्रू जाएगा? एक्सॉन के थ्रू। आया समझ में सबको? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाय। सबसे पहले कॉर्पस ल्यूटियम का कॉन्सेप्ट वैसे मैं बता चुकी हूँ और मेरे स्टूडेंट्स को आता भी होगा। कौन मेंटेन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओवरी के अंदर बेटा जब ओव्यूलेशन हो जाता है, फॉलिकल्स रिलीज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ओवम रिलीज हुआ, ओके, विच इज पिक्ड अप बाय फेलोपियन ट्यूब। ये कौन है जो रिलीज कर रहा है ओवम? ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल के रेमिनेंट्स बनाते हैं एक येलो कलर्ड बॉडी, जिसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, द रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अब ओवरी के अंदर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है विच इज टू रिलीज प्रोजेस्टेरोन, एंड प्रोजेस्टेरोन helps in maintaining the endometrium lining of the uterus. So it makes sure कि यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक ना हो और इम्प्लांटेशन हो सके। पर जो ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम बनने का जो प्रोसेस है, वो कौन कंट्रोल करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो LH दो काम करता है हमारी बॉडी में, एक ओव्यूलेशन और एक कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन from the Graafian follicle. So the correct option is option number 1, LH. आया clearly समझ में? Good, very good. Next question says vigorous contraction of uterus and milk ejection from mammary glands are due to। जल्दी जल्दी आंसर लिखिए सारे स्मार्टियंस। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, 12th में भी आपने पढ़ा ही है। सो हमारे जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है डिलीवरी के टाइम, पार्चुरेशन के टाइम, और मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन अकर ड्यू टू हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, which is produced by hypothalamus but released from posterior pituitary. So the correct answer is oxytocin. Very good. चलो next question देखते हैं। Very easy again. Pigmentation of skin is influenced by। तो जो skin का pigmentation है, that is because of melanin. The pigment inside which is responsible for coloration is melanin. But melanin का सिंथेसिस मेलानोसाइट्स में, मेलानिन किस में बनता है? मेलानोसाइट, द सेल्स दैट प्रोड्यूसेस मेलानिन पिगमेंट आर कॉल्ड मेलानोसाइट। ये मेलानोसाइट सेल मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ वन हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जो सिग्नल देता है मेलानोसाइट को टू प्रोड्यूस मेलानिन।
और ये MSH कौन सिक्रीट करता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। सो द करेक्ट आंसर इज MSH। आया समझ में? चलो वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल माई स्मार्टियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लीप वेक साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। सो जो हमारा सिरकैडियन रिदम होता है या बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल, इवन द इम्यून सिस्टम पावर, ये सब रेगुलेट होता है बाय अ पिगमेंट बाय अ हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन। ठीक है, मेलेटोनिन इज रिलीज्ड फ्रॉम पीनल ग्लैंड। सो पीनल ग्लैंड रिलीज करता है ये, और मेलेटोनिन हमारी बॉडी में मल्टीपल फंक्शन करता है। जो बॉडी का स्लीप वेक साइकिल है ना, जैसे आप एक पैटर्न बनाते हैं स्लीप और वेक का कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, तो जब वो आपकी एक हैबिट बन जाती है तो कुछ टाइम बाद बेटा यू विल रियलाइज़ कि यू विल नॉट इवन नीड अलार्म्स, आपकी नींद उसी टाइम पर अपने आप खुल जाएगी। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ मेलेटोनिन, जो अपने कॉन्सेंट्रेशन को एडजस्ट करता है। डार्क में मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है एंड इट हेल्प्स इन गिविंग यू अ साउंड स्लीप, और जैसे जैसे लाइट आती है द मेलेटोनिन प्रोडक्शन डिक्रीजेस। सो इट इज़ मेलेटोनिन विच हेल्प इन रेगुलेटिंग द स्लीप वेक साइकिल। सिमिलरली रात में लेट तक जागने से, स्लीप वेक पैटर्न ख़राब करने से बहुत सारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ऊपर नीचे हो जाती है आपका। उन ऐसे लोगों का देयर आर रिसर्चेस विच शोज कि पीपल हु हैव अ वेरी वेग पैटर्न और अ रॉन्ग पैटर्न ऑफ स्लीप एंड वेक साइकिल, दे हैव वीकर इम्यून सिस्टम कंपेयर to the people who are sleeping on time, waking up on time. So that is because all is because of melatonin जो affect करता है. So the correct option is option number 4. Hence it is important to have a good sleep wake cycle. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आयोडीन इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो कौन सा हार्मोन है जिसके लिए आयोडीन चाहिए? वी ऑल नो इट, ये तो आप काफ़ी लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स हैं T3 और T4 एंड बोथ ऑफ दीज हॉर्मोन्स आर आयोडाइज्ड फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड कॉल्ड टायरोसिन। तो ये जो हॉर्मोन्स है T3 एंड T4, इनके प्रोडक्शन के लिए आयोडीन होना ज़रूरी है। सो आयोडीन इज़ नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ T3, T4, where T3 is also called thyroxine. So hence the correct option will be option number 4 which says thyroxine. और अगर हमारे डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, राइट? उसकी वजह से गोइटर हो सकता है। सो यू मस्ट हैव रेड अबाउट गोइटर, जिसमें द थायराइड ग्लैंड इन्फ्लेम हो जाता है तो नेक का रीजन स्वेल होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब less production of T3 and T4। जब आपके थायराइड ग्लैंड T3 और T4 प्रोड्यूस ना कर पाए करेक्ट क्वांटिटी में, उसकी कमी होने लगे, डेफिशिएंसी होने लगे, तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर ऐसा केस एक प्रेग्नेंट लेडी में हो तो, या प्रेगनेंसी के टाइम द फीमेल हैज़ हाइपोथायरॉयडिज्म, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? रिमेंबर थायरॉक्सिन जो है बहुत ज़रूरी होता है मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए। तो जब बेबी मदर के अंदर होता है तो मदर का थायरॉक्सिन हेल्प करता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ टिश्यूज़ में, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ दी मेंटल फैकल्टीज़। तो इन सब के लिए थायरॉक्सिन ज़रूरी है। अब अगर प्रेगनेंसी के टाइम ही हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि क्रिटिनिज्म विच इज़ स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ भी बहुत कम होती है।
इस केस में जो स्टैचर होता है वो छोटा होता है, चेस्ट पिजन चेस्टेड होते हैं, तो बेली प्रोट्रूडेड होती है, ये सब होगा। IQ लेवल, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट कम होगा, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज डेफ म्यूटिज्म। सो ऑल ऑफ द थ्री आर करेक्ट, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। आया कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से? वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज बेसल मेटाबॉलिक रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो मेनली किसके हाथ में होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन के, राइट? द थायराइड ग्लैंड हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स इन द बॉडी, राइट? इसलिए आपने थायराइड प्रॉब्लम सुना होगा, विच इज़ बेसिकली हाइपो और हाइपरथायरॉइडिज्म। अगर हाइपोथायरॉइडिज्म होता है यानी थायरॉक्सिन कम रिलीज हो रहा है, तो उस केस में वेट गेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा आप जो भी खा रहे हैं। और अगर हाइपर थायरॉइडिज्म हो जाए तो एक्सेसिव वेट लॉस होने लगेगा, एंड दैट लीड्स टू इमैसिएशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, विच इज थायरॉक्सिन, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PTH स्टैंड्स फॉर, तो ये तो मेरे स्मार्टियंस फटाफट बता देंगे। P स्टैंड्स फॉर पैरा, T स्टैंड्स फॉर थायराइड एंड H फॉर हार्मोन। सो PTH इज पैराथायरॉइड हार्मोन। बट क्वेश्चन मैंने भी रियलाइज किया कि फुल फॉर्म नहीं पूछा है हमसे पूछा है कि PTH कैसा हार्मोन है, हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपोकैल्सिमिक या हाइपरकैल्सिमिक। रिमेंबर पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है पैराथायरॉइड हार्मोन। कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वो मुझसे पहले आंसर बताएंगे पॉज करके। सो दिस PTH हार्मोन helps in increasing the calcium ion levels back to normal in the blood. Increasing का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल से ज़्यादा कर देगा, पर नॉर्मल तक ले आएगा। अगर कम हो गया है ब्लड में कैल्शियम आयन लेवल, तो वो बढ़ा के वापस से नॉर्मल पर ले आएगा। तो अगर PTH कैल्शियम आयन लेवल का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ा रहा है, तो PTH कैसा हार्मोन है? हाइपर कैल्सिमिक। हाइपर मतलब इंक्रीज करना, और कैल्शियम आयन लेवल बढ़ा रहा है तो हाइपर कैल्सिमिक इन नेचर। कैसे बढ़ाता है ये? It basically brings calcium from the matrix of the bone into the blood plasma, or it helps in reabsorption of calcium more from the filtrate which is basically the filtrate formed during excretion, right? तो वहाँ पर reabsorption बढ़ा देगा। So PTH is basically a hypercalcemic hormone, यानी option number 4। आया पूरा कॉन्सेप्ट समझ में? इसी के एंटागोनिस्टिक कौन है? थायरोकैल्सिटोनिन, अ टाइप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम आयन लेवल को डिक्रीज करता है बैक टू नॉर्मल। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो थायरोकैल्सिटोनिन आके उसे कम कर देगा बाय सेंडिंग कैल्शियम बैक टू दी बोन मैट्रिक्स और एक्सक्रीटिंग आउट फ्रॉम द बॉडी, राइट? तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करके मेंटेन करते हैं कैल्शियम के होम्योस्टैसिस को। तो पूरा कैल्शियम होम्योस्टैसिस मैंने समराइज आपको कर दिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। दिस वन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम। तो देखो, इम्यून सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें से कौन दिख रहा है? थाइमस ग्लैंड। हमारे इम्यून सिस्टम स्पेशली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो मेन सेल्स हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, एक B सेल्स और एक T सेल्स, है ना? T लिम्फोसाइट्स। दे आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, यानी A ग्रैन्युलर WBCs। तो ये जो सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी। इसमें से एंटीबॉडी कौन बनाता है? B सेल produces immunoglobulins, ठीक है? और T सेल हेल्प करता है B सेल को टू प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबिन,
as well as it also help in killing the cells directly. तो ये जो T cells हैं ये कहाँ पर मैच्योर होते हैं? They mature in the thymus gland. Thymus is a small gland which is located beneath your breastbone and it basically help in maturation of the T lymphocytes जो कि एक important players हैं आपके acquired immunity के. Acquired immunity मतलब जो आप natural infection के through acquire करते हैं, right? So the correct answer is thymus. अब thymus ये कैसे करता है? By releasing a hormone called thymosin. Thymosin hormone ज़रूरी है immature T cell को mature T cell में convert करने के लिए, ठीक है? आया समझ में? सो हमारे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इम्यून सिस्टम में वो कौन है? थाइमस ग्लैंड. वेरी गुड. पूरा कॉन्सेप्ट जिनको नहीं पता था अब आ गया समझ में बेटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. थाइमोसिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ. अब तो मैंने आपको बता दिया है ना, मेच्योर इमेच्योर से मेच्योर में डिफ्रेंशिएट कौन करता है? टी लिम्फोसाइट्स. तो अब तो सारे मेरे स्टूडेंट्स ने आंसर किया होगा, जिनको नहीं भी पता था अब उन्हें पता है. गुड, वेरी वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए फटाफट. The question says during emergency piloerection, sweating, dilation of pupil are due to. So आपको पता है इमरजेंसी में कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आए फाइट और फ्लाइट की? तो जो हार्मोन्स रिलीज होंगे वो ये सब काम करवाएंगे. जल्दी बताइए कौन है हमारे बॉडी के इमरजेंसी हार्मोन? जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं या फियर में हैं, यू आर इन अ फाइट सिचुएशन, तब ये हार्मोन रिलीज होता है. फटाफट वीडियो पॉज करके लिखिए. यस, वेरी गुड. द हार्मोन्स आर एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, है ना? Adrenaline or noradrenaline are the hormone which are released during the emergency situation. Species to species depend करता है. Humans में एड्रेनालिन ज़्यादा रिलीज होता है. बोलते हैं ना एड्रेनालिन रश हो रहा है जब आप बहुत हैप्पी हैं. जैसे अभी आपके क्वेश्चन सही होते जाएंगे तो यू विल बिकम कॉन्फिडेंट, राइट? यू विल बी हैप्पी. सो दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ एड्रेनालिन रश. तो एड्रेनालिन हमारी बॉडी में इमरजेंसी सिचुएशंस में भी हेल्प करता है, फाइट या फ्लाइट में. और ये दोनों ही हॉर्मोन्स अमीनो डेरिवेटिव्स हैं या अमाइन डेरिवेटिव्स हैं ऑफ कैटिकॉल, राइट? कैटिकॉल क्या होता है ये मैंने आपको समझाया भी है ऑफलाइन क्लासेस में भी. Catechol is basically a benzene ring with a OH and the amino group. तो ये अमीन डेरिवेटिव्स हैं उसके, इसलिए इन दोनों हार्मोन को कैटिकॉल अमीन्स बोला जाता है एज अ कॉमन अम्ब्रेला टर्म. हेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी पाइलोइरेक्शन मतलब गूजबम्स, स्वेटिंग, डायलेशन ऑफ प्यूपल, ये सब कौन करवा रहा है? कैटिकॉल amines, which includes adrenaline and noradrenaline. The correct answer. आया पूरा कॉन्सेप्ट समझ में? सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको उस क्वेश्चन से जो भी कॉन्सेप्ट है पूरा अच्छे से समझा दूँ. आई रियली होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. इफ़ यू आर देन लेट मी ऑल्सो नो इन द कॉमेंट सेक्शन. और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन डू नॉट प्रमोट. सबसे पहले जैसे आई ऑलवेज से पेन पेपर वाला नीट एग्ज़ाम है, हमेशा अंडरलाइन कर लो. डू नॉट पूछा है या डू पूछा है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादातर वही होती है कि अच्छा करेक्ट पूछा था मैम, हमने सोचा इनकरेक्ट पूछा था, हमने देखा ही नहीं. तो वाई टू लूज़ मार्क्स फॉर सच सिली मिस्टेक्स जो आपके प्रॉपरली ध्यान देने की वजह से न होती है. तो प्लीज़ अंडरलाइन. यहाँ पे पूछा है डू नॉट, इसमें से नॉर एड्रेनालिन क्या नहीं कर सकता या एड्रेनालिन क्या नहीं कर सकता. देखो
सबसे पहले ये सोचो ये कब रिलीज होते हैं बॉडी में, फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन में। अब फाइट और फ्लाइट करने के लिए क्या चाहिए होगा, एनर्जी। सो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एनर्जी इज नीडेड, है ना। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बॉडी ग्लूकोज बनाएगी या ग्लाइकोजन बनाएगी, ग्लाइकोजन को तोड़ेगी, है ना। तो अगर मुझे बॉडी में एनर्जी चाहिए तो बॉडी ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी रेस्पिरेशन, द सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए, या ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस रोकना पड़ेगा। ग्लाइकोजन होता है जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, राइट, अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड। तो इस समय मुझे ग्लाइकोजन बनवाना नहीं है, उसको तोड़वाना है ताकि ग्लूकोज निकले और बॉडी के सेल्स उसे ऑक्सीडाइज करके एटीपी बनाए, एंड दैट विल हेल्प इन फाइट एंड फ्लाइट। सो सच टाइप ऑफ हार्मोन विल प्रमोट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन का लाइसिस ब्रेकडाउन, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। और ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाएगा ग्लाइकोजन को तोड़ के या प्रोटीन्स और फैट्स को भी तोड़कर, राइट। सो अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या था, ऑप्शंस क्या क्या थे। क्वेश्चन है डू नॉट, राइट। सो विल इट प्रमोट ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, यस, इसके लिए। ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, यस। ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, नो 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 नो, ये नहीं हो सकता क्योंकि अभी तो एनर्जी चाहिए। सो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन नहीं होगा। सो दिस इज समथिंग जो ये दोनों हार्मोन नहीं कर सकते। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन तो करना ही है। सो माय करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि पूछा है क्या नहीं कर सकते। तो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, बल्कि वो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कर सकते हैं। आया, चलिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई एम रियली होपिंग कि सब कुछ समझ में आ रहा है। फटाफट से इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन 19. Question 19 is very simple, direct. It says main glucocorticoid is. So glucocorticoid क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज। जिनको आता है वो तो फटाफट आंसर्स दे दो कमेंट सेक्शन में, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगना है क्योंकि मेन नीट में टाइम मैनेजमेंट ही है जो आपको करना है। मैक्स अपना टाइम जो है सेव कीजिए, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना है क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा। क्वेश्चंस का लेवल नहीं है डिफ़िकल्ट, इट्स ऑल अबाउट कि आप उस गिवन टाइम में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। तो बायो सेक्शन 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, OMR के साथ लगभग 40-45 मिनट्स में, सो दैट यू कैन गिव टाइम टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पेपर इजीली, राइट। तो अभी आपसे इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा देती हूँ। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स आर द हार्मोन steroidal hormones which are secreted from the adrenal cortex, hence the name corticoid। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है वो एक तरीके का कॉर्टिकॉइड है, एक स्टेरॉइडल हार्मोन है जो रिलीज होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एंड इट हेल्प इन मेंटेनिंग द ग्लूकोज लेवल, मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। हालांकि इसके और भी काम हैं, बट अगर मैं एक जनरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल फंक्शन बताऊं तो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। सो द एग्जाम्पल इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है बॉडी में जो कि हेल्प करता है ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन अदर थिंग्स, जैसे RBC फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। In fact, to your surprise, let me also tell you, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल को
हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एड्रेनालिन तो निकल ही रहा है स्ट्रेस में, पर कॉर्टिसोल भी स्ट्रेस हार्मोन होता है, पता है? तो ये भी स्ट्रेस के टाइम बढ़ जाता है। सो इट डू मल्टीपल फंक्शंस इन द बॉडी है। पर अभी आपसे फंक्शन नहीं पूछा, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा है। इंसुलिन नो, ग्लूकागॉन नो, कॉर्टिसोल यस, एल्डोस्टेरॉन नो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट। चलिए और इसमें ये भी आप याद रखिएगा, आई फॉरगॉट टू टेल, कि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, क्योंकि मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ग्लूकोज ही है, तो इसलिए आई हैव फोकस्ड मोर ऑन ग्लूकोज, अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट लेवल मेंटेन करना। एल्डोस्टेरॉन इज दी, तो ये भी एक तरीके का कॉर्टिकॉइड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स ही रिलीज करता है, बट इट इज अ टाइप ऑफ मिनरेलोकॉर्टेक्स कॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। सो ये एक ऐसा स्टेरॉइडल हार्मोन है जो मिनरल्स यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करता है। पता है, एल्डोस्टेरॉन हमारी बॉडी में सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। इट कॉजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड एलिमिनेशन ऑफ पोटेशियम आयन, ठीक है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन कर रहा है, मिनरल्स और आयंस का बैलेंस मेंटेन कर रहा है, कैसे है? ये मेन दो चीज़ें हैं कि ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का एलिमिनेशन करवाता है बॉडी में। सो इट्स अ टाइप ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। रेस्ट जो हमारे ऑप्शन है वो गलत है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, क्वेश्चन 21। इट सेज हार्मोन्स दैट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कौन मेंटेन कर रहा है? एल्डोस्टेरॉन, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। अगर मिनरल्स का इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल मेंटेन होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी द प्रेशर ड्यू टू द सॉल्यूट वो भी मेंटेन होगा, और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी ये मेंटेन करता है। जैसे मैंने बोला कि एल्डोस्टेरॉन रीएब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम आयन का। जब भी बॉडी में जीएफआर रेट जो है वो फॉल होने लगता है ना, जीएफआर रेट फॉल होता है, रेनिन आता है, रेनिन एल्डोस्टेरॉन भी सिक्रीट एंजियोटेंसिन 2 के थ्रू एल्डोस्टेरॉन भी सिक्रीट करवाता है। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन जो लैटर पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, उनसे रीएब्जॉर्प्शन करवाता है किसका? सोडियम का, राइट। और उसकी वजह से जीएफआर रेट बढ़ता है। तो जब सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है फ्रॉम दी latter parts of the nephron if I talk about, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई है ना, तो सोडियम रीएब्जॉर्प्शन अगर हुआ बॉडी फ्लूइड में, मतलब ब्लड में गया, तो पीछे पीछे वाटर भी जाएगा, है ना, तो दैट विल हेल्प इन मेंटेनिंग दी फ्लूइड बैलेंस एज वेल। तो ये सारे ही फंक्शन हैं आपके मिनरेलोकॉर्टिकॉइड विच इज एल्डोस्टेरॉन। तो इस क्वेश्चन में हमने एल्डोस्टेरॉन के सारे फंक्शंस भी समझ लिए। क्लियर? जिनको पहले से पता था वेरी गुड, जिनको नहीं पता था उन्हें आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए फटाफट। द क्वेश्चन सेज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन इज। कौन सा हार्मोन हाइपरग्लाइसेमिक है? हाइपर मतलब हाई, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज अमाउंट। सो हार्मोन विच इंक्रीजेस glucose concentration in the blood is called hyperglycemic hormone. Increases मतलब back to normal, है ना, अगर कम हो गया है तो बढ़ा के नॉर्मल पे ले आएगा। तो ऐसा हार्मोन हमारी बॉडी में है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हाइपर कैल्सिमिक होता है, जबकि इंसुलिन ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक होता है,
जबकि इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक होता है। इंसुलिन मेक श्योर कि आपके ग्लूकोज लेवल नॉर्मल पर रहें, अगर ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वो कम कर देता है, और अगर कम हो रहा है तो बढ़ा देता है ग्लूकागॉन। सो टुगेदर दे मेंटेन शुगर बैलेंस। जैसे हमने अभी कैल्शियम का होम्योस्टैसिस किया, ऐसे ही शुगर का बैलेंस मेंटेन करते हैं ग्लूकागॉन और इंसुलिन। जब भी आप फास्टिंग करेंगे तो ग्लूकागॉन रिलीज होगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन करवाएगा, ब्लड में लेके आएगा। कैसे करवाएगा? ग्लाइकोजन को तोड़वा के, राइट। और जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके बाद इंसुलिन आता है बॉडी में, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को मसल्स, लिवर में भेज देता है फॉर यूटिलाइजेशन, लिवर में टू फॉर्म ग्लाइकोजन। सो वो तो इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक है जबकि ग्लूकागॉन हाइपर। सो कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, इंसुलिन नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 विच इज ग्लूकागॉन। आया पूरा समझ में? गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन 23 करो फटाफट। और अभी जो मैंने आपको समझाया उससे ही रिलेटेड है, तो आई एम वेरी होपफुल कि आपको आ ही जाएगा। It says rapid movement of glucose into hepatocyte and adipocyte। जो ग्लूकोज का मूवमेंट है, हिपैटोसाइट्स आर लिवर सेल्स, और एडिपोसाइट्स क्या है? फैट स्टोरिंग सेल्स। तो ग्लूकोज इन सेल में फटाफट कौन भेजेगा? जब ग्लूकोज को ब्लड में नहीं रखना होगा तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भेजे जाएंगे इनकी तरफ, है ना। यानी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम करना है, और कम कौन करता है? इंसुलिन। वो लिवर के पास भेज रहा है कि भाई एक्स्ट्रा है, ग्लाइकोजन बना लो, आप फैट बना लो बनाना है तो इसलिए हमारा ये आंसर क्या होगा? इंसुलिन। यानी इनडायरेक्टली पूछा है हाइपोग्लाइसेमिक कौन है। ठीक है, आया समझ में? So the next question says diabetes mellitus is characterized by, मतलब कौन सा इसमें से फीचर है जो डायबिटीज मेलिटस में होता है। सबसे पहले we need to understand कि डायबिटीज मेलिटस होती किसकी वजह से है। डायबिटीज दो टाइप की होती है, मेलिटस और इंसिपिडस। Diabetes insipidus has nothing to do with glucose level. It is due to the inefficiency of the body to produce ADH, antidiuretic hormone और vasopressin. जबकि diabetes mellitus is due to the inefficiency of, अगर दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 में इंसुलिन का ही प्रॉब्लम है। एक में या तो इंसुलिन बन रहा है पर सेल्स नहीं उसको सेंस कर पा रहे, और एक में इंसुलिन ही नहीं बन पा रहा है, राइट। तो बेसिकली आपसे अभी जो इंसुलिन डिपेंडेंट वाली है वही पूछी जा रही है इन जनरल कि डायबिटीज मेलिटस में होता क्या है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस इंसुलिन। टाइप 1 जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी इंसुलिन बना नहीं रही है तो हमें इंसुलिन पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब क्योंकि बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है, नॉट एबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन, तो क्या होगा? जो इंसुलिन तो हेल्प करता था ग्लूकोज को डायरेक्ट करने में फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड्स टूवर्ड्स दी सेल्स, चाहे वो स्केलेटल मसल्स के सेल हैं, लिवर सेल्स हैं, एडिपोसाइट्स हैं, है ना, डिक्रीजिंग दी ग्लूकोज लेवल बैक टू नॉर्मल। अब अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो क्या होगा? इंसुलिन नहीं बनेगा तो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रह जाएगा। नाउ बॉडी हैज़ टू समहाउ एलिमिनेट ग्लूकोज, सो इन सच केस द बॉडी एलिमिनेट ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ यूरिन या वाया यूरिन। सो ऐसे पेशेंट्स में या डायबिटीज़ का एक सिम्टम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, एंड द यूरिन इज रिच इन ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है बॉडी से, इंसुलिन है नहीं, इट इज़ नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेल, हेंस इट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड वाया यूरिन। सो डायबिटीज मेलिटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ एपेटाइट, नो। लॉस ऑफ ग्रोथ, नो। लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, येस, ग्लूकोज यूरिन के थ्रू एलिमिनेट किया जाएगा, करेक्ट। ऑल ऑफ दीज, नो। सो माई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3।
टाइप 2 क्या होता है बेटा, इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, इसमें सेल्स जो होते हैं ना वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं टू इंसुलिन। क्लियर, मैंने आपको ये क्लासेस में भी समझाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, लेडिक सेल सिक्रीट्स। तो थोड़ा सा लेडिक सेल के बारे में भी बता देंगे, बट माय स्मार्टियंस जिनको पता है प्लीज़ फटाफट अटेम्प्ट करिए और बताइए लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं। सी, दिस इज बेसिकली टेस्टिस, ये स्क्रॉटम है ना, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, ये टेस्टिस है। अब टेस्टिस के अंदर जो होते हैं वो कंपार्टमेंट्स होते हैं, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। हर कंपार्टमेंट में हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है, 1 2 3, विच आर कॉल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल। और इन सेमिनिफेरस टिब्यूल, जिसके अंदर बेसिकली आपका स्पर्मेटोजेनेसिस चलता है यानी स्पर्म फॉर्मेशन, इन ट्यूब्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं कॉल्ड लेडिक सेल्स। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन मेल बॉडी में लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है बाय द टेस्टिस इटसेल्फ। पर अब आप हाई लेवल पे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिस में कौन प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरॉन। सो द टेस्टोस्टेरॉन इन टेस्टिस इज प्रोड्यूस्ड बाय लेडिक सेल्स, इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। तो ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरॉन विच इज नीडेड, आई रोट अ रॉन्ग स्पेलिंग, आई एम सॉरी। चलिए, testosterone which is needed for spermatogenesis as well as development of the secondary sexual character. Testosterone is a type of sex corticoid. It is also called androgen. ठीक है, एंड्रोजन भी बोल सकते हैं। तो अब है क्वेश्चन, अटेम्प्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ गए हैं हम। लेडिक सेल सिक्रीट इंसुलिन, नो, वो तो पेनक्रियास सिक्रीट करता है। ग्लूकागॉन, वो भी पेनक्रियास। एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन है, सो यस। एस्ट्रोजन, नो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में? चलिए, क्वेश्चन 26 सेज नॉट अ फंक्शन रिलेटेड विद एंड्रोजन। सो एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है मैंने अभी आपको समझाया। स्पर्म फॉर्मेशन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कि प्यूबिक हेयर, बियर्ड, मोस्टैशेस, है ना, ये सब आना, द सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करना विच इज़ कॉल्ड लिबिडो। आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखा है मेल्स में सेक्सुअल बिहेवियर को लिबिडो बोलते हैं, ये टर्म आ जाता है। अभी तो पूछा नॉट अ फंक्शन, नॉट कौन सा चीज़ नहीं है, तो लिबिडो तो अफेक्ट करता ही है। कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, ये एंड्रोजन का काम नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। ये कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंड्रोजन। स्पर्मेटोजेनेसिस, यस। एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, यस, प्रोटीन्स आर यूज्ड, सिंथेसाइज्ड, जो चाहिए होते हैं, तो यस ये भी होगा, फोर्थ भी होगा, थर्ड भी, फर्स्ट भी, बट सेकंड इज द रॉन्ग आंसर। और हमें यही पता, मतलब रॉन्ग आंसर मतलब इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंड्रोजन, और क्वेश्चन यही था कौन सा एंड्रोजन का फंक्शन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 गोज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, वेरी इजी। कॉर्पस ल्यूटियम, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में आपको पूरा कॉर्पस ल्यूटियम समझाया है कि वो हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन में, जो कि हेल्प करेगा यूटेराइन लाइनिंग को मेंटेन करने में, और कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने के लिए LH चाहिए। सो अभी तो ये पूछा है कि ये क्या सिक्रीट करते हैं, सो इट सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। जिनको नहीं याद आ रहा पीछे करिए, क्वेश्चन निकालिए जहाँ मैंने ये समझाया है आपको। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन ओवरी सिक्रीट करती है, रिलैक्सिन ओवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
Oxytocin is released by posterior pituitary. So correct option is progesterone. चलो next question फटाफट. Atrial natriuretic peptide is produced by. मैंने आपको ये बताया है कि कुछ ऐसे chemicals हैं which act as hormones but they are not released by some endocrine gland. वो हमारी बॉडी के कुछ organs release करते हैं जो glands नहीं हैं, जिसमें से एक है ANF. ANF आपने excretion and elimination वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा. ANF का फंक्शन होता है टू चेक RAS मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जो हेल्प करता है. ये मैकेनिज्म किस में हेल्प करता है? इन इंक्रीजिंग GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द बॉडी बैक टू द नॉर्मल. तो जब GFR नॉर्मल आ जाता है तो RAS सिस्टम को रोकना ज़रूरी है कि अब आपका काम हो गया है, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ता रहा हार्ट पे भी प्रेशर पड़ेगा और हार्ट उस प्रेशर को फील करके ANF रिलीज करता है जो आके इसको रोक देता है, ब्लॉक कर देता है कि आपका काम ख़त्म है, रुक जाओ क्योंकि मेरे को भी प्रेशर फील हो रहा है. सो ANF इज़ अ हार्मोन रिलीज्ड बाय हार्ट और इसका क्या फंक्शन है वो मैंने आपको समझा दिया है. आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली कॉन्सेप्ट आ गया होगा. Next question, secretin acts on the. So if you remember, secretin is the first hormone to be discovered or detected, we can say, and it acts on the pancreas, exocrine pancreas, to cause release of water and bicarbonate. So the correct option is pancreas. ऐसा भी दे सकते थे endocrine pancreas, exocrine. So remember it acts on exocrine part of the pancreas. ठीक है, क्या रिलीज करवाता है? वाटर एंड बाइकार्बोनेट. आया समझ में अच्छे से? क्लियर? चलो, ये सब आपको वो जो लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है अदर टाइप्स ऑफ हार्मोन उसमें मिल जाएगा. देन कम्स हार्मोन रिसेप्टर ऑन द टारगेट टिश्यू आर मेड अप ऑफ. अभी आपसे पूछा है कि जिस भी टारगेट पर हार्मोन काम करने जा रहा है उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किसके बने हैं, राइट? सो हमारी बॉडी में सबसे डाइवर्स मॉलिक्यूल होता है प्रोटीन. प्रोटीन हैज़ डाइवर्स फंक्शन. इनफैक्ट डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल से पहले तक यही हाइपोथेसाइज किया गया था कि शायद प्रोटीन ही हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल. इट्स वेरी डाइवर्स. ये रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, एंटीबॉडीज़ की तरह काम करते हैं, हार्मोन की तरह काम करते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की तरह काम कर सकते हैं. दे एक्ट एज चैनल प्रोटीन्स. सो दे हैव डाइवर्स रोल. इवन जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ये प्रोटीन ही होते हैं. आया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल अमाइनो एसिड. मतलब अमीन हार्मोन बताना है. जो हार्मोन एक अमाइनो एसिड से बनते हैं उन्हें अमीन हार्मोन कहते हैं, राइट? अमीन हार्मोन में कैटेकॉल अमीन्स आते हैं, है ना, जो कि 2 टाइप के होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन. फिर इस पे आपका दिस थायरॉक्सिन आएगा बिकॉज इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन. मेलेटोनिन आएगा जो कि ट्रिप्टोफैन से डिराइव होता है. ठीक है, तो अभी कौन कौन से दिए हैं इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव फ्रॉम सिंगल अमाइनो एसिड? थायरॉक्सिन यस, ऑक्सीटोसिन नो, एस्ट्राडायोल नो, एपिनेफ्रिन यस. तो इसके 2 आंसर्स हैं मेरे पास इस समय, थायरॉक्सिन और एपिनेफ्रिन. बोथ विल बी करेक्ट, राइट? दोनों को ही मार्क्स अवॉर्ड होंगे. सो बोथ आर करेक्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं. हार्मोन दैट इज हैविंग रिसेप्टर ऑन द सरफेस. तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पूछ रहे हैं. अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, रिसेप्टर सरफेस पे है रादर देन इंटरसेलुलर रिसेप्टर इनसाइड नहीं है,
तो वो हॉर्मोन्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्रेंडली नहीं है, यानी विच आर नॉट लिपिडिक, वो जो है क्या कहते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर है। मैंने आपको लिपिडिक बताया कि आप याद रखो, लिपिडिक हार्मोन और थायरॉक्सिन हार्मोन वाले अंदर जा सकते हैं, बाकी नहीं जाएंगे। तो एस्ट्रोजन स्टेरॉइडल है, राइट, तो ये वाला तो अंदर जा सकता है इंटरसेलुलर। आइडोथायरोनोनिन, मैंने बोला थायरॉक्सिन, थायराइड वाले हार्मोन अंदर जा सकते हैं। FSH इज अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, तो इसका तो रिसेप्टर यहीं पर लोकेटेड होगा, इट कैन नॉट गो इनसाइड, सो इट विल हैव अ सरफेस और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। वेयर एज टेस्टोस्टेरॉन इज स्टेरॉइडल, तो ये भी अंदर जा पाएगा, तो ये भी कैसा होगा, इंटरसेलुलर, जबकि हमें सेल सरफेस रिसेप्टर ढूंढना है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. Then comes question 33, which says melanocyte stimulating hormone is secreted by. मैंने आपको पीछे पिट्यूटरी का कॉन्सेप्ट सिखाया कि पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी की 2 लोब्स होती हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। हालांकि ह्यूमंस में पार्स इंटरमीडिया फ्यूज हो जाती है डिस्टेलिस के साथ, पर जो MSH है, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जो मेलानोसाइट्स को सिग्नल देता है टू रिलीज मेलेनिन, वो रिलीज होता है पार्स इंटरमीडिया से। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क भी कर लेना, काफ़ी बार आता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, पार्स इंटरमीडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The question is about progesterone, which is also called pregnancy hormone because it helps in maintaining the uterine lining, right, for implantation and growth of the fetus. So आपसे पूछा है कि progesterone कैसा हार्मोन है? Is it a protein useful for morphogenesis? No, it is not a protein. Help in relaxing uterus during parturition? No. An enzyme helpful for growth? No. It is responsible for growth and maintenance of fetus? Yes, क्योंकि ये implantation cause करता है ताकि fetus आराम से uterus में grow हो पाए। So the correct option is option number 4. Next question says the function of penile body is to. penile body से मेलेटोनिन रिलीज होता है और मेलेटोनिन के मल्टीपल फंक्शन में आपको समझा चुकी हूँ, तो उस नॉलेज पर इसको अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं। लाइटन द स्किन कलर, ओके, क्या कहते हैं, मेलेटोनिन जो है वो स्किन पिगमेंटेशन में भी इन्वॉल्व होता है, तो यस। कंट्रोल सेक्सुअल बिहेवियर, करेक्ट। इट रेगुलेट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, करेक्ट। सो सारे ही ऑप्शन सही हैं, यानी ऑल ऑफ दीज, पीनल बॉडी ये सब कर सकती है, ठीक है। फाइंड आउट द ऑड वन आउट, ओके, कौन सा, ओके, पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज करता है PTH, और PTH कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ाता है। सो इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंस इन दिस हार्मोन, तो क्या होगा, टेटने कॉज होगा, क्योंकि कैल्शियम विल देन बी इन द मसल्स लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक, जो कंटिन्यूसली होता रहेगा, तो ये सही है। पेनक्रियास डायबिटीज इंसिपिडस, नो, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH, ना कि ना इंसुलिन, है ना। ADH की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, सो दिस हैज नथिंग टू डू विद पेनक्रियास। यही हमारा ऑड वन आउट होना चाहिए, बट विल सी। एड्रिनल कॉर्टेक्स, कुशिंग सिंड्रोम, यस। थायराइड गोइटर, यस। सो द ऑड वन इज ऑप्शन नंबर 2, which is pancreas linked with diabetes insipidus। यहाँ डायबिटीज मेलिटस होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mr. Singh is about to face an interview, so he's nervous. But just before few minutes, he experienced increased rate of respiration, heartbeat, and profuse sweating. हम समझते हैं it is due to adrenaline rush. तो which hormone is causing it? Adrenaline and noradrenaline. So option number 3. ये तो अब सबको ही पता है, ठीक है। Next question.
It says according to accepted concept of hormone action, if receptors are removed from the target organ, हम receptors को ही remove कर दें तो target organ will, अगर किसी target organ पर hormone कैसे act करता है, ऐसे आंसर आपको दिख गया है बट कोई बात नहीं, बाय बाइंडिंग टू अ पर्टिकुलर रिसेप्टर। पर मैं ये रिसेप्टर ही हटा दूँ तो वो सिग्नल ही नहीं दे पाएगा, हेंस इट विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू दी हार्मोन। यही सही है बट सारे पढ़ लेते हैं। कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड टू दी हार्मोन, नो इट कैन नॉट। कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड बट इन ऑपोजिट वे, नो, कुछ सेंस ही नहीं कर पाएगा। Continue to respond hormone but will require, no. Concentration has nothing to do, there should be receptor जो अंदर तक सिग्नल पहुंचा सके, so it will not respond to the hormone. Question 39 फटाफट अटेम्प्ट कीजिए। It says the steroid hormone responsible for balance of water and electrolytes in the body. अब मैं आपको ये करवा चुकी हूँ। It's a mineralocorticoid and mineralocorticoid कौन है? एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, आता है ना? गुड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 40 इज रिलेटेड टू एडिसन्स डिजीज। Addison's disease results from, so Addison's disease is due to hypo secretion from adrenal cortex, right? This is due to hyposecretion of the aldosterone. Addison's disease होता है जिसमें एलिमिनेशन ऑफ सोडियम होने लगेगा, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन तो सोडियम के एलिमिनेशन को रोकता था, तो सोडियम बहुत एलिमिनेट होने लगेगा यूरिन के थ्रू, लेवल सोडियम के प्लाज्मा में गिर जाएंगे, डायरिया, नोजिया, ये सब होने लगता है। सो इट इज़ ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी बुक में एडिसन्स डिजीज़ मेंशन्ड है, अच्छे से इसको कर लेना, इसे भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्लियर हो गए 40 क्वेश्चंस? चलिए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेव्स डिजीज इज ड्यू टू, फटाफट कीजिए क्या आंसर होगा, फिर मैं समझाऊंगी। पॉज करो, बताओ, ये तो आना ही चाहिए, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा। जिन्हें नहीं पता, ग्रेव डिजीज का नाम एक डॉक्टर पे पड़ा है जिन्होंने सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किया था, इस डिजीज को। It is also called exophthalmic goiter, ठीक है, और ये एक टाइप का ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो ग्रेव डिजीज में बेटा क्या होता है, किसी फैक्टर की वजह से हमारे इम्यून सिस्टम में ऐसी एंटीबॉडीज ट्रिगर हो जाती हैं जो मिमिक करती हैं थायराइड ग्लैंड को, and they go and bind to it and start secreting T3 and T4। अब थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन तो कंट्रोल्ड है बॉडी में, बट ये जो एंटीबॉडीज बनी जो मिमिक कर रही हैं उसे, उसका कंट्रोल सेंटर बॉडी में नहीं होगा, जिसकी वजह से T3 एंड T4 का अमाउंट बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाएगा। और इसका एक सिम्टम होता है बल्जिंग आउट ऑफ आइज, इसलिए एक्सऑप्थेल्मिक, बल्जिंग आउट ऑफ आइज, ठीक है। और इसीलिए इसको एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर भी बोलते हैं। एड्रिनल जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो भी स्वेल कर जाता है। सो दिस इज ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी, सो हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स या थायराइड ग्लैंड। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है। रेस्ट एड्रिनल से तो ये रिलेटेड है ही नहीं, ना ही पेनक्रियास से। क्लियर हुआ पूरा ग्रेव डिजीज के बारे में? वेरी गुड। Now the next question says thymosin is responsible for, so I have explained you this concept. Thymosin is a hormone secreted by thymus gland which help in differentiation of T lymphocytes, यानी immature T lymphocytes का maturation
जो होता है वो थाइमस ग्लैंड में होता है, जो कि एक तरीके का प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोन थाइमोसिन. सो थाइमोसिन हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट पहले वाले कुछ क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है. आई होप यू रिमेंबर. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. Now moving to next question, question 44. Interesting and important as well. It says increase in bleeding time and delay in blood coagulation. Coagulation is clotting. तो अगर bleeding time बढ़ रहा है, coagulate होने में delay हो रहा है, तो वो किसकी deficiency की वजह से हो सकता है body में. Now you have to think a bit. जो clotting है वो किसकी वजह से होती है? कैल्शियम आयंस की वजह से. इफ यू रिमेंबर, कैल्शियम आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एज इट एक्टिवेट द एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज. थ्रोम्बोकाइनेज फिर फर्दर हेल्प करता है क्लॉटिंग कैस्केड प्रोसेस में. इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड, देन इट विल लीड टू डिले इन द क्लॉटिंग. अब ब्लड में कैल्शियम आयन मेंटेन किसको करना है, या लेवल को इंक्रीज कौन करता है? मेंटेन तो दो हार्मोन करते हैं, पैराथायरॉइड और थायरोकैल्सिटोनिन. दोनों ही पैराथायरॉइड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन एंटागोनिस्टिक हैं, जैसे मैंने समझाया. पीटीएच हाइपर कैल्सिमिक है, यानी ये ब्लड में कैल्शियम आयन लेवल को बढ़ाता है, और थायरोकैल्सिटोनिन secreted by thyroid gland is hypocalcemic. तो अगर मेरे को टाइम लग रहा है, if there is delay in the clotting, then it means कैल्शियम आयन क्या है? लेवल लो है in case of delay. तो लो कब होगा? जब बॉडी में पीटीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम आयन लेवल कौन बढ़ाता है? पैराथायरॉइड हार्मोन. सो इट मींस पैराथायरॉइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है, कैल्शियम आयन ब्लड में कम है, और ब्लड में कैल्शियम आयन कम होने की वजह से क्लॉटिंग में टाइम लग रहा है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स टू कॉन्सेप्ट, क्लॉटिंग का, कैल्शियम आयंस का रोल और पैराथायरॉइड. इफ़ यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ कि क्लॉटिंग के लिए कौन सा आयन चाहिए, देन इट्स डिफिकल्ट. सो इट्स इम्पॉर्टेंट यू आर एबल टू लिंक योर नॉलेज प्रॉपरली. सो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 3. नाउ अटेम्प्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. It says in the mechanism of protein hormone, one of the second messenger is. अब देखिए, हॉर्मोन्स जो हैं अपना सिग्नल रिसेप्टर या टारगेट ऑर्गन तक रिसेप्टर्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं. रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, या फिर रिसेप्टर इंट्रा सेलुलर होते हैं इनसाइड द सेल, जो फिर न्यूक्लियस को सिग्नल देते हैं. करेक्ट. अगर हार्मोन थायराइड वाले हैं या स्टेरॉइडल हैं, देन दे एंटर इनसाइड. बट अगर हार्मोन प्रोटीनेशियस है, तो फिर, या अपार्ट फ्रॉम दीज थायराइड एंड स्टेरॉइड कोई भी है, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन, तो फिर उसको वहीं पर बाइंड करना पड़ेगा मेम्ब्रेन बाउंड. ऐसे केस में, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के केस में, हार्मोन का सिग्नल न्यूक्लियस तक पहुंचाने के लिए बीच में क्या चाहिए? सेकेंडरी मैसेंजर्स. और कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स आपकी बुक में एनसीईआरटी, जहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन मेंशन्ड है विद द डायग्राम, क्लियरली बताया गया है. सेकेंडरी मैसेंजर्स में कैल्शियम आयंस आते हैं. सेकेंडरी मैसेंजर्स में साइक्लिक एएमपी आता है, कैल्शियम आयन है, साइक्लिक एएमपी है, और IP3 है, इनोसिटॉल फॉस्फेट्स हैं. तो ये कुछ एग्जाम्पल है सेकेंड मैसेंजर के, जो न्यूक्लियस तक मेम्ब्रेन बाउंड वाले हार्मोन्स के सिग्नल को भेजेगा. तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन में साइक्लिक एएमपी गिवन है, सो दिस इज द करेक्ट
इंसुलिन नो इट्स अ हार्मोन, T3 हार्मोन है, गैस्ट्रिन हार्मोन है, दे आर नॉट सेकेंडरी मैसेंजर, ये तो प्राइमरी मैसेंजर है, ये तो हार्मोन्स ही हैं जो मैसेज लेके आ रहे हैं, तो दे आर द मेन मैसेंजर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 साइक्लिक AMP। इसके अलावा और क्या हो सकते थे वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। करेक्ट। The next question, cretinism occurs due to, so cretinism is due to hypothyroidism. We have discussed this in our earlier questions as well. Thyroid hormone की कमी की वजह से cretinism disease हो जाता है इन्फेंट्स में, और ये डिजीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, फिजिकल ग्रोथ स्टंटेड होती है, मेंटल डेवलपमेंट कम होता है, लो IQ है, पॉट बेलीड है, पिजन चेस्टेड है, सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर हाइपोथायरॉइडिज्म के केस में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। Going to next questions, attempt before I tell. It's a case study where it says a patient of diabetes mellitus excrete glucose in the urine even when he is kept in a carbohydrate free diet. It is because, तो कार्बोहाइड्रेट वैसे वो पेशेंट कंज्यूम ही नहीं कर रहा है, फिर भी यूरिन में ग्लूकोज का सिक्रीशन दिख रहा है क्योंकि इंसुलिन की कमी है, बट बॉडी में कार्बोहाइड्रेट आया कहाँ से, ग्लूकोज आया कहाँ से, व्हेन द पेशेंट इज नॉट कंज्यूमिंग इट। सो द करेक्ट आंसर इज इट इज बिकॉज नंबर 1 फैट्स आर कैटेबोलाइज्ड टू फॉर्म ग्लूकोज। यस, है ना, फैट्स जो हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं। Amino acids are catabolized in liver. No, not amino acids. Amino acids are discharged into bloodstream from the liver. No. Glycogen from the muscles are released into the bloodstream. No. This is also not the case. The case is कि जब कार्बोहाइड्रेट्स आप कंज्यूम नहीं करते तो जो भी हमारी बॉडी में फैट्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है, विच इज़ कॉल्ड लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस। सो ग्लूकोज यहाँ पर फैट के कैटाबॉल। नेक्स्ट, लो प्लाज्मा Na पॉजिटिव, हाई K पॉजिटिव एंड रिड्यूस रिएक्शन to stress is due to hyposecretion of। तो यहाँ पर रिड्यूस रिएक्शन है स्ट्रेस में, कैल्शियम सोडियम आयन का लेवल कम हो रहा है प्लाज्मा में और पोटेशियम आयन का लेवल बढ़ रहा है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ हाइपोसिक्रीशन ऑफ विच टाइप ऑफ हार्मोन। इफ वी सी इट इज ड्यू टू cortisol which is a type of ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सो इसी के हाइपोसिक्रीशन से इट इज़ बीइंग दीज प्रॉब्लम्स आर अकरिंग। और कॉर्टिसोल एक जो है स्ट्रेस हार्मोन भी है, मैंने आपको पहले भी बताया। नाउ कमिंग टू assertion and reason, I have told you earlier also in my practice video, assertion and reasons how you have to attempt. Read the assertion part, make it a question and answer it with your correct conceptual knowledge before you read the statement of the reason. Then go for reading the reason statement. If your answer, explanation to assertion coincides with the statement given in the reason part, then option A, where both are correct and R is explanation of A, will be the option. If the reason comes out to be different than what you have thought as based on the correct knowledge, तो it would be and is a correct statement B, यानी दोनों सही है but explain नहीं कर रहा है, otherwise दोनों गलत होंगे या फिर reason गलत होगा, assertion सही होगा। यहाँ पर assertion दिया है a protein hormone carries out its function through a second messenger. सो कैन इट बी अ, पहले तो ये सही स्टेटमेंट है या गलत, सो इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। कैन बी इट बी अ क्वेश्चन, येस, कि एक प्रोटीन हार्मोन को अपने फंक्शन के लिए सेकेंड मैसेंजर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज प्रोटीन हार्मोन्स कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, hence they have to bind to the receptor present on the membrane and need to convey their message through another messengers like cyclic AMP, calcium ions या IP3. Reason,
प्रोटीन हॉर्मोन्स कैन नॉट पास, यही हमने बोला कि इट कैन नॉट पास थ्रू लिपिड बाइलेयर. सो इट इज़ अ करेक्ट रीजन and correctly even explain the assertion. So answer is A, where both are true and R explains the A. सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत पड़ेगी तभी जब आप मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हो. सो ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट एजर्शन रीज़न अब आप अटेम्प्ट करेंगे. मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है. सो बिफोर आई एक्सप्लेन इट शुड बी यू एक्सप्लेनिंग इट in the comment section. Now what could be the reason if I have to answer that how thyroid hormone maintain body temperature is because thyroid hormones are responsible in regulation of metabolism. Metabolism means all the chemical reactions which occur in the body. अगर thyroid hormones metabolism में involved हैं, which is catabolism and anabolism, so a lot of catabolic reaction और anabolic reaction, जैसे अगर दोनों हैं तो एम्फीबॉलिक, will lead to release of energy in the form of heat as well, and this heat is responsible, metabolic heat is responsible for maintaining the temperature. Now let's see the reason. The reason says thyroid hormones stimulate the use of cellular oxygen, right, metabolism to produce ATP, and as cell produce and use more ATP, more heat is given off, है ना. Cellular respiration, which is oxidation of the carbohydrate, fats और proteins जब होता है तो उसमें कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है. वही मेटाबॉलिक हीट आपके इंटरनल होम्योस्टैसिस या टेम्परेचर को मेंटेन करती है. तो रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का कि थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं और उसकी वजह से हीट जनरेट होता है. सो ऑप्शन नंबर ए, वेयर बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स द ए पार्ट. Next question, question 51, very easy. The first statement assertion says thymus play a role in immunity. True. How? By secreting thymosin, which help in differentiation of T cells, which are important players of acquired immunity. Reason says B lymphocyte mature in thymus. No, thymus में B नहीं, T lymphocyte mature करते हैं. तो assertion सही है but reason false है. So option number 3 is the correct option. Clear? I really hope you are able to solve all the questions now. Assertion says insulin is antagonistic, मतलब opposite to glucagon. ट्रू. कैसे? इंसुलिन जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक है, जो कि ग्लूकोज लेवल को कम करता है ब्लड में, और ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक है, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है टू ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल. अब इंसुलिन कैसे करता है? बाय डूइंग ग्लाइकोलाइसिस, बाय डूइंग ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करवा के, या ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा के, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनवाना, which is a kind of anabolic reaction, whereas glucagon do hyperglycemic condition create करता है by catabolic reaction, जैसे कि लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस. सो ये कैटाबॉलिक है और इंसुलिन एनाबॉलिक है ना. ये बनवाता है ताकि ग्लूकोज डाइवर्ट हो जाए. तो रीज़न भी यही दिया है कि ये एनाबॉलिक हार्मोन है, विच इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल. सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सही है, आ गया सारा समझ में. यू शुड बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन विथ करेक्ट कॉन्सेप्ट. उसके लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी टॉपिक इज रिक्वायर्ड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज hormone calcitonin has antagonistic effect to that of parathormone. Is it a correct statement? Yes. अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही मैंने समझाया है. थायरोकैल्सिटोनिन जो कि हाइपोकैल्सिमिक है, यानी ये
ब्लड में कैल्शियम आयन कम करता है और पैराथॉर्मोन हाइपर कैल्सिमिक है जो ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल्स को बढ़ाता है. सो बोथ आर एंटागोनिस्टिक this way. Now if we see the reason, calcitonin decreases blood calcium ion level, yes, hypocalcemic. पैराथॉर्मोन increases blood calcium ion, yes, hypercalcemic. इसलिए दोनों opposite हैं. So both true and explain भी करते हैं. Option number 1 again is the correct option. आया समझ में? सब कुछ हो रहा है. Let me know in the comment section if you still have problem. Now moving on to the next question. The next question says assertion. Aldosterone is a steroid hormone and is important in the control of sodium and potassium concentration in the mammal. Is it a steroid hormone? Yes, aldosterone steroid hormone है. It's a corticoid which is a steroid hormone released from adrenal cortex. As explained in earlier question, aldosterone जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो मेंटेन करता है सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को ह्यूमंस में या फिर मैमल्स में कह सकते हो. हाउ डू इट डू? सोडियम आयन का ये रीएब्जॉर्प्शन करता है and increases the level of sodium ion in the blood or in the ECF. reabsorption कहाँ से? जैसे कि tubular part of the nephron से. And it causes elimination of potassium ion. So first is correct and how it maintains वो मैंने आपको reason explain किया. Reason says it upgrades sodium ion concentration in the ECF by promoting reabsorption from renal tubule and excretion of potassium ion in the urine, right? So ये sodium potassium ion को control करता है इस तरीके से जो हमने explain किया. So reason is also correct and it correctly explains the assertion part. So option A is the correct option. With all the questions we are able to revise all the concepts of hormone from this chapter. So that's really good thing. अगर आपने चैप्टर नहीं भी किया है तो भी आपको सारे मैं टॉपिक्स दोबारा क्वेश्चंस के थ्रू समझा रही हूँ. आई होप इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड इफ़ येस प्लीज़ लेट मी नो. 55th फटाफट अटेम्प्ट करते हैं. डायबिटीज इंसिपिडस इज मार्क्ड बाय एक्सेसिव यूरिनेशन, करेक्ट, एंड टू मच थर्स्ट ऑफ वाटर. सबसे पहले डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH. It has nothing to do with insulin. This is all because of ADH, anti-diuretic hormone. Anti मतलब opposite, di is dilute, uretic मतलब urine. So a hormone which is against the formation of dilute urine. So anti-diuretic hormone की deficiency की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है which leads to frequent urination क्योंकि यूरिन अब concentrate नहीं हो पा रहा है. It is highly diluted and hence there is a feeling of thirst. Antidiuretic hormone, reason says, is secreted by posterior lobe of pituitary. Yes, both statements are correct but reason is not explaining the assertion. Assertion का reason ये होना चाहिए था, it is due to deficiency of ADH which is unable to concentrate the urine. ठीक है, जबकि रीजन में सिर्फ ADH का लोकेशन दिया है कहाँ से सिक्रीट होता है. सो ऑप्शन नंबर 2 both are correct but reason cannot explain assertion. Then question 56. So now we have another category of questions which are match the following. So let's first match them, फिर हम options देखेंगे. तो कॉलम 1 में हम फंक्शंस लिखना शुरू करते हैं. टेस्टिस रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन, राइट. सो ए का होगा 4th. ओवरीज एस्ट्रोजन, द फॉलिकल्स रिलीज एस्ट्रोजन. सो 3rd. penile body is releasing melatonin which regulate our circadian rhythm यानी sleep wake cycle, so it is 2, and melanin is for pigmentation. So option हमारा A का 4th, B 3rd, C 2, D 1. So option number 3 is the correct
option. If you are able to do very good, I am proud of you then. Next question. Okay. Hypothalamus, lactation after childbirth, reabsorption, FSH, no. हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कंट्रोल करता है रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन LH एंड FSH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. सो ए का क्या हो जाएगा? फोर्थ. एंटीरियर पिट्यूटरी, आउट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन्स निकलते हैं FSH एंड LH, सो थर्ड वाला होगा. ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो डाइल्यूट यूरिन नहीं बनने देगा, सो इट विल हेल्प इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, सो इट विल बी 2. एंड प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क फॉर्मेशन in the mammary glands after childbirth, which is lactation period. So D1. अब ये किस में मैच होगा? A fourth, B3, C2, D1, again option number 3. So all who have done it correctly, very good. Next part, चलिए फटाफट मेरे कहने से पहले आप attempt कीजिए. So it is basically including many diseases in this. Addison's disease अभी हमने किया था. This is due to hyposecretion of hormones of adrenal cortex, right? When adrenal cortex is destroyed, then mineralocorticoid and glucocorticoid secretion decreases, which leads to Addison's disease. So it is related to adrenal cortex. First, third. टेटने फटाफट बताइए, अभी हमने टेटने से रिलेटेड क्वेश्चन किया था. सो टेटने इज ड्यू टू पैराथायरॉयड हार्मोन, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन जब सिक्रीट होता है, कैल्शियम आयन जो है इट विल बी मोर इन दी मसल्स अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी, और उसकी वजह से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. सो कैल्शियम आयन से रिलेटेड है, इसलिए पैराथायरॉयड. Acromegaly is a result of over-secretion of growth hormone after adolescence. अगर growth hormone adolescence से पहले बहुत ज़्यादा secrete हो रहा है, then it leads to gigantism. But adolescence के बाद जब होता है तो stature इतना लेंथ में इंक्रीज नहीं होता, बट द बोन्स, फेशियल बोन्स, द हैंड बोन्स, दे इंक्रीजेस, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाता है. सो एक्रोमेगेली ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, इसलिए फर्स्ट. माइक्स्टेमा थायराइड हार्मोन की वजह, ग्लैंड की वजह से, सो इट इज 2. इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 गोज द राइट ऑप्शन. A3, B4, C1 एंड D2. नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग. फटाफट आप अटेम्प्ट करके मुझे आंसर बताएंगे बिफोर आई टेल यू. टेस्टोस्टेरॉन. टेस्टोस्टेरॉन विल हेल्प इन increasing the muscle growth because it is one of the secondary sexual character in males. So yes, a testosterone के लिए first जा सकता है. ANF, I have told you, it regulates or checks renin-angiotensin mechanism secreted by liver, and therefore it decreases the blood pressure. So ANF will be, again this will be 2. Glucagon will basically help in breakdown of glycogen, यानी ग्लाइकोजन को लिवर से निकाल के ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज करवाना. सो डिक्रीज इन लिवर ग्लाइकोजन कंटेंट, क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन रश, तो इट विल इंक्रीज हार्ट बीट. तो ये तो सारे मैच्ड ही हैं 1 2 3 4, विच इज ऑप्शन नंबर 1. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्कैडियन और डायरनल rhythm of the body such as sleep wake cycle is regulated by which hormone. अभी आपको बिल्कुल याद हो गया होगा. सो मार्क इट फास्ट. इट इज मेलेटोनिन. करेक्ट. रेस्ट रॉन्ग है. ठीक है. नेक्स्ट 61. तो इसमें हमें करेक्ट मैचिंग ऑफ हार्मोन
उसका सोर्स और फंक्शन, जिसमें ये चारों तीनों कॉलम एकदम करेक्टली डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो बिफोर आई डिस्कस, यू टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। फर्स्ट ऑप्शन है वेसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये सही है। सोर्स इंक्रीजेस लॉस ऑफ वाटर, नो। जो वेसोप्रेसिन ADH है वो डिक्रीज करता है वाटर लॉस, ठीक है। देन नॉरएपिनेफ्रिन बाय एड्रिनल मेडुला, करेक्ट। इट इंक्रीजेस हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, अलर्टनेस, करेक्ट। सोर्स भी सही है, फंक्शन भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन तो 2 है, बट बाकी 2 ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑलवेज रीड ऑल द ऑप्शंस इवन इफ यू नो द आंसर यू हैव गॉट। ग्लूकागॉन बीटा सेल्स, यही गलत हो गया, ये अल्फा सेल्स होगा, ना कि ना बीटा सेल्स। प्रोलैक्टिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं होता है, प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। Next question. A health disorder that result from the deficiency of thyroxine in adults. तो यहाँ पर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो रही है, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म, और एडल्ट्स में है। क्रिटिनिज्म एडोलेसेंट से पहले रहता है। कैरेक्टराइज्ड बाय लो मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज बॉडी वेट and tendency to retain water in the tissue. So this type of disease is myxedema, जो कि adults में देखा जाता है, hypothyroidism का केस है। So the correct option is option number 2. Direct, very direct question given in book, simply आपके पास symptoms दिए हैं and you have to identify. Question 63, जल्दी अटेम्प्ट कीजिए एंड लेट मी नो। दिस वी हैव डन इट एम्पल नंबर ऑफ टाइम्स नाउ कि कैल्शियम आयन लेवल्स का होम्योस्टैसिस 2 हार्मोन ने मेंटेन कर रखा है, पैराथायरॉयड हार्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। पैराथ हार्मोन इज हाइपरकैल्सिमिक एंड थायरोकैल्सिटोनिन इज हाइपोकैल्सिमिक। अभी पूछा है कि कैल्शियम आयन लेवल लोअर कौन करेगा, इज लोअर्ड, अच्छा लो हो गया है ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ। अगर लो हो गया है डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब जो बढ़ा रहा था कैल्शियम आयन लेवल वो नहीं है, सो हाइपर कैल्सिमिक पैराथ हार्मोन होता है। बॉडी में पैराथ हार्मोन कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो कैल्शियम आयन डिक्रीज होता चला जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी ये नहीं पूछा है कि लो कौन करता है, ये पूछा है कि किसकी डेफिशिएंसी से लो होता जाएगा, सो दैट इज पैराथ हार्मोन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूड only endocrine gland? So out of all the pair we need to find out ऐसा जो सिर्फ आपकी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करते हैं, नॉट एज एनी अदर ऑर्गन और एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। फटाफट आप ही मुझे सबसे पहले आंसर लिख के बताएंगे। थाइमस एंड टेस्टिस। इफ आई टॉक अबाउट थाइमस, इट्स अ लिम्फॉइड ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड टेस्टिस भी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, और ये एक सेक्स ऑर्गन भी है, तो ये तो नहीं होगा पेयर। एड्रिनल एंड ओवरी, सो एड्रिनल ग्लैंड ओके, बट ओवरी इज ऑल्सो अ सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सो इट कैन नॉट बी। थर्ड है पैराथायरॉइड एंड एड्रिनल। सो पैराथायरॉइड और एड्रिनल दोनों ही सिर्फ आपकी बॉडी में क्या है, endocrine gland, nothing else. So the correct answer should be option number 3. But let's even see the next option, pancreas and parathyroid. अब parathyroid तो endocrine है, but pancreas exocrine gland भी होता है, यानी heterocrine. Though we only need endocrine, so the correct option is option number 3. ठीक है, समझ आया। Next question, question 65 says
Feeling the tremors of an earthquake, a scared resident of 7th floor of a multi-storied building starts climbing down. Which hormone initiates? So it's an emergency situation, fight or flight की situation है. So in this case it is flight, and during this such situation we have adrenaline rush in the body. Hence the correct option will be adrenaline, option number 1. And I know you all must have answered it. So the next question says, again a kind of case study. A person is having problem with calcium and phosphorus metabolism in his body. Which of the following gland is not functioning properly? कैल्शियम और फॉस्फोरस बैलेंस मेंटेन करने के लिए पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम और फॉस्फोरस आयंस के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पैराथायरॉइड हार्मोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन. अभी इसी मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. सो इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम और डेफिशिएंसी और डिफेक्ट इन द पैराथायरॉइड ग्लैंड. Hence your answer will be option number 4, which is parathyroid gland. Next question says, which hormone causes dilation of blood vessels, यानी narrowing down हो रहा है, increased oxygen consumption and glycogenesis. So glycogen का formation, oxygen consumption ज़्यादा होना और blood vessels का dilate होना किस हार्मोन की वजह से होगा? अगर ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है यानी ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, विच हार्मोन कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस. तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन है, ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी बन रही है, डायलेशन हो रहा है ब्लड वेसल्स का यानी ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है. सो ऑल दीज आर डन बाय एड्रेनालिन. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. कमिंग टू 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी की ही लाइन है, तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहीं से है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट that you read line by line your NCERT. statement based questions में problem हो जाएगी अगर आपने NCERT को अच्छे से नहीं पढ़ा. It's important that you revise it thoroughly. First statement says endocrine glands regulate neural activity. That's true, but not vice versa. That's false. Endocrine gland neural activity को regulate करते हैं और neural system endocrine activity को regulate करता है, दोनों. Neuron regulate endocrine activity but not vice versa. Again a wrong statement. हमें correct statement ढूंढनी है. Endocrine gland regulate neural activity and nervous system regulate endocrine gland. Yes, it's vice versa. दोनों करते हैं. So third is correct. Neither hormone regulate neural activity nor neuron. No. हमारी बॉडी में दोनों ही कंट्रोल सिस्टम है और दोनों एक दूसरे को रेगुलेट करके रखते हैं. ग्लैंड्स कब सिक्रीट करेंगे हार्मोन, वो न्यूरॉन्स बताएंगे, और न्यूरॉन्स पर क्या इफेक्ट आएगा वो हार्मोन्स के थ्रू भी होता है. सो इट इज़ बोथ वेज. हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूमुलेशन एंड रिलीज सेंटर ऑफ न्यूरो हॉर्मोन्स. न्यूरो हॉर्मोन्स किसे कहते हैं? न्यूरो हॉर्मोन्स का कॉन्सेप्ट पहले. सो देर आर 2 न्यूरो हॉर्मोन. वन इज ऑक्सीटोसिन एंड अदर इज ADH, antidiuretic hormone, which are secreted by special neurosecretory cells called nuclei of the hypothalamus. तो जो न्यूक्लियाई सेल्स हैं ऑफ हाइपोथैलेमस वो ये दोनों हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और इन दोनों हार्मोन का जो एक्यूमुलेशन या रिलीज है वो कहाँ से होता है? बेसिकली ये दोनों हार्मोन न्यूक्लियाई बनाता है हाइपोथैलेमस का. देन दे आर गिवन टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जब हाइपोथैलेमस कहता है तब ये रिलीज कर देता है. ठीक है. सो दे आर रिलीज्ड
from the posterior lobe of pituitary. Option number 2 is the correct option. इसीलिए posterior pituitary direct neural control में होता है. चलो फटाफट से अब 70 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. अ स्टेरॉइड हार्मोन विच रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कर चुके हैं हम. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पूछा जा रहा है एंड दैट इज द फेमस वन इज कॉर्टिसोल. सो ऑप्शन नंबर 2 बहुत डायरेक्ट है. आई नो यू मस्ट हैव डन इट. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर. तो सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे नॉट कौन नहीं है. अभी मैंने आपको सेकेंडरी मैसेंजर्स कुछ फेमस वाले करवाए कि एटलीस्ट वो आपको पता होने चाहिए. रिपीट कीजिए मेरे साथ. साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयन, IP3. एटलीस्ट ये 3 आपको पता होने चाहिए. सो लेट्स सी. साइक्लिक एएमपी होता है, हमें ढूंढना है कौन नहीं है. Cyclic GMP, this is not a secondary messenger, so this will be our correct option. Calcium होता है, IP3 होता है, so correct option is option number 2. I know my all smartians have done it by now. Next, Sertoli cells are regulated by pituitary hormone known as. So Sertoli cells are special types of cell जो lining of seminiferous tubule में located होते हैं. We have testis के अंदर compartments के अंदर highly coiled tubes called seminiferous tubule, which is the main site of spermatogenesis. अब seminiferous tubule की lining में 2 टाइप के सेल हैं. एक स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म मदर सेल जिनका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और एक होते हैं सर्टोली सेल जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करके एंड्रोजन्स यानी टेस्टोस्टेरोन को सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर अट्रैक्ट करते हैं सो दैट स्पर्मेटोजेनेसिस कैन टेक प्लेस प्रॉपरली. सो सर्टोली सेल्स पर एक्ट करने वाला हार्मोन होता है FSH. ठीक है, FSH सर्टोली सेल को हेल्प करता है टू प्रोड्यूस androgen binding protein and thereby attract all the testosterone synthesized by Leydig cell under the effect of LH. So it is regulated by FSH. Option number 2. ये 12th में भी आपने किया है hormonal regulation in males करके जो है. So FSH is the correct option. Coming to question 75, it says enzymes, vitamins and hormones. All these 3 are characterized into a single category of chemicals because all of these. तो what is the reason कि इन तीनों को एक ही कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है. पहला है हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म. यस, एंजाइम्स भी, वाइटामिन्स भी और हार्मोन्स कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, इसलिए तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं. So option number 1 is the correct option. Are exclusively synthesized in body of living organism as at present. नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जब ज़रूरत है बस तभी सिंथेसाइज हो. हॉर्मोन्स के केस में ऐसा होता है, बट फॉर वाइटामिन्स इट इज़ नॉट. आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, सारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स नहीं होते. इनफैक्ट वाइटामिन्स तो प्रोटीन्स है ही नहीं, वो एक टाइप के लिपिड्स होते हैं. Enhance oxidative metabolism, no, they can do any type of metabolism, that is important. So option number 1 is the correct. ये भी आप important mark कर लीजिए. ठीक है. Now going to next question. Which one of the following pair correctly matches a hormone with a disease resulting from its deficiency? So कौन सा हार्मोन और उसकी डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज करेक्ट पेयर है करेक्टली. ठीक है, पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन. करेक्ट. अगर LH की कमी हुई तो ओव्यूलेशन नहीं होगा क्योंकि LH ओव्यूलेशन रेगुलेट करता है. इंसुलिन डायबिटीज इंसिपिडस, नो. बहुत बार बता दिया है कि इंसुलिन की कमी से होने वाली डायबिटीज मेलिटस होती है,
इंसिपिडस ADH की वजह से। तो यही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन, यही करेक्ट पेयर है। अगर LH का डेफिशिएंसी हुआ तो फिर ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओव्यूलेशन ह्यूमन फीमेल में LH कराता है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी डायबिटीज इंसिपिडस नी मेलिटस करता है, फॉल्स। थायरॉक्सिन से टेटने नो, PTH से टेटने होगा। पैराथायरॉइड हार्मोन से मेलिटस नो। हमें करेक्ट पेयर निकालना था, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट पेयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। केमिकली हॉर्मोन्स आर, तो वी हैव डन द केमिकल कैटेगरीज ऑफ हार्मोन। दे कैन बी प्रोटीन्स विच आर डेरिवेटिव्स ऑफ long chains of amino acid. They can be amines which are derivatives of single amino acid, or they can be steroids. So option number 2 shows all the three category कि ये protein, steroids या amines हो सकते हैं। Correct option। ठीक है, next question attempt कीजिए। Question 76, which of the following hormone is not a secretion product of human placenta? So human placenta कौन सा hormone release नहीं करता है? It releases HCG. Yes, HCG is released in human female only during pregnancy by the placenta, which mimics LH. Prolactin? No. Prolactin is released by the anterior pituitary. HPL, human prolactogen, HPL is secreted by placenta. Estrogen, yes. Progesterone, yes. So option number 2 is the correct option कि placenta prolactin release नहीं करेगा। Important, this is also important question, you should be knowing this। ठीक है। 77, which of the following correctly matches the hormone and the deficiency disease? Relaxin, gigantism, no. This is due to extra secretion of growth hormone। प्रोलैक्टिन, क्रिटिनिज्म, नो। क्रिटिनिज्म जो होता है वो हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है। पैराथायरॉयड हार्मोन टेक्ने, करेक्ट। इंसुलिन, डायबिटीज इंसिपिडस, रॉन्ग, मेलिटस। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम द चैप्टर। Acromegaly is caused by, as I have told you, acromegaly is due to excessive secretion of growth hormone after adolescence, जिसकी वजह से stature का length नहीं बढ़ता, but the long bones of facial bones they become long, giving gorilla-like appearance. So it is excess of STH growth hormone की वजह से। ठीक है। STH stands for somatostatin hormone, which is another name for growth hormone. Adrenaline directly affects on, adrenaline heart rate बढ़ाता है, so it affects the SA node जो कि हमारी body heart का pacemaker है। So option number 1 ही correct option है। Beta cells, spinal, no. All these three are wrong. Last question, question 80, when both the ovaries are removed from rat, which hormone decreases in the blood? तो सबसे पहले ओवरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन ओवरीज रिमूव हो जाए तो एस्ट्रोजन का अमाउंट ब्लड में कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। I hope you are able to do all these questions properly, and I have tried to teach you all the concepts from the chapter through these questions. So I am expecting you all are confident about the topics, the questions from the chapter, be it given it in any way, you will be able to do it. Do let me know if you have any doubts in your do let me know if you still have any doubts from any part of the question or the chapter in the comment section. I'll definitely answer them. I really hope with this series you are able to practice the different diversity of questions from each chapter. Let me also know in the comment section which chapter's question you want me to practice with you with all the concepts. I'll pick up that first. So I'm waiting for it.
Till then, keep studying NCERTs properly. NEET is now very near, so buckle up and do revision as many time as you can. All the 12th class students, you should be doing board practice also, because you cannot neglect board. So focus on 12th NCERT as well, so that you score in boards also really good. 11th को भी properly concept wise साथ में रखिए. NCERT reading biology में is a must. So all the best, keep studying, keep smiling.